Now, the next question which we want you to understand is what is economics? Uh, this is again pre first chapter ke pehle ka, which we want you to understand. Then we will see the history of economics, which we have already seen in the I think previous year or yesterday, and you will find this in the basic terms ka videos. But now, what is economics we are learning? Now, सबसे पहले the interesting part is how did the word economics come into being? ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी की बुक में शायद नहीं है. ये just I have created so that it will help you to understand कि ये word कैसे आया. सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स को पहले इकोनॉमिक्स बोलते ही नहीं थे. 250 years back they used to call it political economy. फिर वक्त के साथ साथ वो चेंज होते गया. Now it is called as economics. Now let me ask you one question. कौन से देश का ये फ्लैग है? ग्रीस. ग्रीस. सो नाउ तुमको समझ में आ रहा होगा कि द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. सबको समझ में आया? सो द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. कौन सा वर्ड है? ओइकोस नोमोस. अगेन इसमें भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी है. कुछ लोग ओइको एंड नोमोस बोलते हैं, कुछ लोग ओइकोस एंड नोमोस बोलते हैं. बट I have spent sufficient time to come to the conclusion that this is the best derivation. ठीक है? What is meant by oikos and nomos, and then I'll explain you the meaning और इसका interpretation. So economics का जो word है Greek word से आया है, which is oikos and nomos. सबसे पहले तो जो oikos तुम्हारे सामने है और दूसरा है nomos. oikos nomos को दो भाग में बांटा गया है. कुछ बुक में, कुछ वेबसाइट पे तुमको ओइको भी मिल जाएगा. सो अगेन इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस है. बट लेट अस अंडरस्टैंड. ओइकोस मींस होम और तुम्हारे सामने नोमोस का मीनिंग आ रहा है होम मैनेजमेंट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये वर्ड कैसे आया. नाउ इन ग्रीक वर्ड ओइकोस नोमोस इज हाउ द फैमिली used to manage their house with limited income. जो हाउस था उनका जो लिमिटेड इनकम था उससे वो लोग अपना घर कैसे चलाते थे, उससे ये वर्ड आया है. ठीक है? कौन सा? ओइकोस एंड नोमोस. सिमिलरली इसको ही मैं एक्सटेंशन देके आई कैन कम टू द हिस्ट्री. हिस्ट्री तो बता दिया, but short में what exactly is economics? This is the person who is called as the father of economics. He is credited to have written the first ever textbook of economics, जिसका नाम है An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. But famously इसको Wealth of Nations बोलते हैं. You will be surprised to know that this textbook was published in the year 1776. Adam Smith was born in the year 1723. He died in the year 1790. बुक 1776 को पब्लिश होने के 250 साल भी आज भी प्रिंट में है. इनफैक्ट प्रोबेबली इफ यू गो टू सार्वजनिक वाचनालय या कहीं पे यू विल फाइंड दिस बुक. नासिक में भी मिल जाएगा बुक. इनफैक्ट यू कैन गो टू Amazon and also buy this book, Wealth of Nations. अब इसमें कंटेंट क्या था बुक में, ये तुम्हारा क्वेश्चन में है. सो आई विल डिस्कस दैट. He was a Scottish economist who wrote this book. Again, he is regarded as the father of economics because this book is supposed to be the first book on economics. ठीक है? Now, if somebody asks you, जो अपना अगला वीडियो होगा वो अलग अलग definitions of economics जो वक्त के साथ साथ दिया गया उस पे होगा. But there can be thousands of definitions about economics. You can also create your own definition. But एक universally accepted definition जो है, he was born 17, वो तो मैंने बता दिया. एक universally accepted definition जो मैं अभी तुमको बता रहा हूँ, मतलब if you ask any economist, he will say this comes to the closest definition of economics. Now why you might be saying कि sir why perfect नहीं है? Because economics में you are dealing with humans. Human beings are imperfect. Therefore
जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन विल आल्सो बी जनरल, करेक्ट? सो इकोनॉमिक्स को डेफिनेशन में लेट अस डिवाइड इनटू टू सब पार्ट्स। जैसे मैंने ड्राइंग किया, ये मेरा एक क्रिएशन है, तुमको कहीं पे भी मिलेगा नहीं ऐसे पीपीटीज, या किसने क्रिएट किया होगा तो सिमिलर, बट दिस इज व्हाट आई हैव डिजाइन सो एज टू मेक इट इजियर। पहला पार्ट में स्कैरसिटी और दूसरा पार्ट में चॉइस। नाउ स्कैरसिटी क्या होता है? इफ यू, लेट मी आस्क यू वन थिंग, लेट मी और कमेंट ऑन वन थिंग। सी, जिंदगी कैसी है, अपने घर पे जो मेड काम करते हैं वो अपनी तरह बनना चाहते हैं। डू यू एग्री? डू यू एग्री? अपने घर पे जो मेड Yes, sir. काम अपनी तरह बनना चाहते हैं। Yes. अपन बनना चाहते हैं कोई फिल्म स्टार, मे बी एक्ट्रेस की तरह, ठीक है? एक्ट्रेस बनना चाहती है बिल गेट द रिचेस्ट पर्सन की तरह, रिचेस्ट आदमी बनना जाना चाहता है चांद में, या ही बोलते ना एवरीबॉडी, देयर इज अ मार्स मिशन जहां पे इफ यू वांट टू गो टू मार्स, जहां तक मेरा नॉलेज है 10 करोड़ का टिकट है, दैट इज व्हाट आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड, ठीक है? सो what does this mean कि our maid wants to be like us, we want to be like film stars, ठीक है? फिल्म स्टार्स वांट टू बी रिच, दे आल्सो ऑब्जर्व मुकेश अंबानी। इसलिए तुम देखो बॉलीवुड, तुमने कभी बॉलीवुड की शादी, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे, देखा था? Yes, sir. बिकॉज बॉलीवुड रिच दिखता है, बट मुकेश अंबानी के सामने कुछ भी नहीं है। मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट मैन इन एशिया, टॉप 5 में आई थिंक वर्ल्ड में है, एटलीस्ट टॉप 5 तो नहीं, टॉप 10 में तो मिल ही जाएंगे, ठीक है? और अभी तो जियो का शेयर मार्केट में नहीं आया, रिलायंस का शेयर है बट जियो और रिलायंस रिटेल का शेयर नहीं है। द मोमेंट ये दोनों आ गए तो ही बिकम टॉप 3 में आ जाएगा वो मैं एसपी में सिखाऊंगा कैसे, अभी तुमको समझेगा नहीं। सो व्हाट इज मेंट बाय स्कैरसिटी? कमी ना, कमी, कमी मीन्स शॉर्टेज, और scarcity is felt by everybody because by default of human being we want to expand. if you are satisfied with one thing, ऐसा होगा नहीं, you want the other. For example, तुमको पहला मोबाइल लिया दिया होगा पापा ने, वीवो या ओप्पो, बट तुम्हारे सपने आईफोन के होंगे। तुमको ऑप्शन दिया जाए सैमसंग चाहिए कि आईफोन, तुम हैंड्स डाउन तुम आईफोन बोलेंगे। डू यू एग्री? Yes. Yes, sir. अच्छा, आईफोन मिलने के बाद भी लोग खुश नहीं होते, दे वांट एन आईपैड। फिर और क्या आता है इसमें आईफोन में? AirPod. एयरपोर्ट चाहिए, फिर भी शांति नहीं है लोगों को, ठीक है ना? तो people always want something more. It's not because they are selfish. Every human being is selfish because वो जीने के लिए उसको सांस तो लेना है ना। तो कुछ भी हो जाए, he would think of his survival first. कुछ भी हो जाए, of course he will say parents ज्यादा बच्चों के लिए त्याग करते हैं, but ultimately it is for their family self. It's not selfish in a way, being for living for self बात कर रहा हूँ, not लालची की बात नहीं कर रहा हूँ, but everybody wants something for themselves which can be spiritual or financial or mental या emotional, ठीक है ना? So कमी हर जगह पे है, nobody is absolutely satisfied, और भगवान ने ऐसा अपना डीएनए बनाया, we want more. It want more मतलब somebody who runs 1 kilometer wants to run 1.5 kilometer, somebody who earns 1 lakh a month wants 1.5 lakhs a month, ठीक है ना? So a person is never satisfied, there is always a scarcity, or because scarcity है there is a choice. So what happens कि between, if you are given an option Oppo, Vivo, Samsung, OnePlus और इसमें क्या नाम है तुम्हारा iPhone, you cannot buy all the phones together because the funds will always be limited. In fact, if you go to electronic store like Reliance Digital, लैपटॉप में भी तुमको पता नहीं होगा, व्हेन आई वेंट टू बाय द लैपटॉप, 2 लाख रुपए तक के भी लैपटॉप है, 1.5-2 लाख रुपए के। सो तुम बजट जितना चाहो, टेलीविजन में देर आर टेलीविजन 5-5 लाख के टीवी आते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ इट? हैव यू हर्ड ऑफ इट? Yes, sir. सो 50,000 का टीवी लोग सोचते हैं बहुत बड़ा है, बहुत महंगा है। 5 लाख, यू गो टू दुबई, वहां पे जो लग्जरी कार है, व्हेन आई वेंट टू दुबई,
वहां पे रास्ते में लग्जरी, तुमको मारुति ऑल्टो जैसे गाड़ी नहीं दिखेंगे, एवरीथिंग इज ओनली लग्जरी कार्स। वहां पे लोग बेचते नहीं वो सेकेंड हैंड, उनको अपमानित लगता है। जो शेख लोग हैं वो लोग रास्ते में छोड़ देते हैं गाड़ी, दे नेवर सेल द कार, उनके लिए वो इंसल्टिंग होता है। सो व्हाट इज मेंट बाय स्कैरसिटी, यू विल ऑलवेज फील कि कुछ कमी है, you will always want to have more, and because you want something more और पैसा कम है, you have to make a choice। वो वाली बात है, तुमको पापा ने बोला कि लिमिट इज 50,000, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास चॉइस सैमसंग, वन प्लस या आईफोन, आईफोन का सस्ता वाला वर्जन, 8वां 9वां 10वां। सो ये ह्यूमन नेचर है। सो स्कैरसिटी के बारे में हम कुछ और बोलना चाहेंगे। स्कैरसिटी हर जगह पे है, नेचर में भी। अपने शरीर को जो एनर्जी लगता है वो भी कम है, मतलब समटाइम्स यू फील गुड, समटाइम्स यू फील डाउन, ये जिंदगी है। यू विल नॉट बी फीलिंग एनर्जेटिक थ्रू द डे और ऑल द टाइम, ठीक है ना। स्कैरसिटी इज द कंडीशन इन विच वांट्स तुम्हारे बहुत ज्यादा है, देन आर लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब कि सपोजिटली इफ यू हैव अ कार, तुम्हारे पास ऑल्टो है तो तुम चाहोगे वैगन आर, वैगन आर जिसके पास है तो वो चाहेगा स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट डिजायर जिसके पास है वो चाहेगा 10 लाख का सीएस, जिसके पास सीएस है वो चाहेगा होंडा सिटी, होंडा सिटी जिसके पास है वो चाहेगा मर्सिडीज सी क्लास, जिसके पास मर्सिडीज सी क्लास है वो चाहेगा बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू जिसके पास है वो मर्सिडीज मेबैक करके आती है महंगी। सो प्रॉब्लम इज एवरी द मनी दैट यू हैव एंड द रिसोर्सेज यू हैव, उससे ज्यादा तुम्हारे वांट है। नाउ ये ह्यूमन नेचर है, विच somebody can call it selfish ले लो, बट ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ऑफ कंटिन्यूसली वांटिंग टू एक्सपांड। और बिकॉज पैसा लिमिटेड है तो प्रॉब्लम आ जाता है, तुमको चॉइस करना पड़ता है। तुम आज फरारी लेने जाओ, 2-4 करोड़ की गाड़ी आती है, ठीक है ना। घर कुछ घर ही करोड़ रुपए के रहते तो 2-4 करोड़ की कार कहां से खरीदें। सो वांट्स ज्यादा है, ठीक है। सिंस हम सारे के सारे वांट्स एक साथ पूरे नहीं कर सकते, हमको चॉइस करना पड़ता है। अब ये भी जाने दो, बेस्ट एग्जांपल नासिक में, तुम किससे भी पूछो, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तुमको कौन से कॉलेज में जाना है, आंख बंद करके लोग क्या बोलेंगे? बीवाईके। डू यू एग्री? मेजोरिटी Yes. लोग, लड़के लोग तो उनको बीवाईके के ज्यादा सोचता ही नहीं है, और लड़कों को प्रोफेशनल विजडम बिल्कुल जमता नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। डू यू एग्री? Yes, sir. हाँ, इसलिए लड़कों को ना विजडम और प्रोफेशनल मिला था, बेचारों के पेरेंट्स ने जबरदस्ती डाला होगा, खुद से नहीं आया होंगे। तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हैं जो विजडम में एडमिशन लिए हैं? है कोई स्कूल के फ्रेंड्स? हाँ सर। बड़े दुखी होंगे वो लोग। डू यू एग्री? नहीं नहीं सर, खुशी खुशी आए सब। गर्ल्स क्या, खुशी तो है ही विजडम आया में, बॉयज की बात कर रहा हूँ। जो स्कूल के फ्रेंड्स कलीग्स जो थे, कोई सुना है तुमने विजडम का या प्रोफेशी का? लड़के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बिकॉज लड़कों को बीवाईके का चाहिए, लड़कियों को भी आजकल बीवाईके कॉलेज लगता है। सो विजडम एक कंफर्ट लेवल देता है, एक प्रोटेक्शन और सेफ्टी देता है, एक टीचिंग देता है। बीवाईके में तो तुमने सुना होगा कुछ होता नहीं है, सुना है ऐसा? Yes. तो एवरीबडी वांट्स फ्रीडम, बट सबको मिलता नहीं है, क्योंकि बीवाईके का क्लोजिंग लिस्ट मेरे टाइम में तो 70% में मिल जाता था, 60% में मिल जाता था। आजकल तो 85-90 से कम मिलता नहीं है। सो व्हाट हैपेंस, लोग जो बीवाईके सोचते नहीं मिलता, लास्ट में गोसावी में चले जाते हैं। सुना है तुमने बीवाईके के बाजू में जो गोसावी है, सुना है? Yes. लास्ट में दुखी होते हैं, बोलते हैं, फिर सबको बोलते हैं हम लोग बीवाईके में, एक्चुअली रहते हैं गोसावी, और गोसावी भी 2 है वहां पे। बीवाईके के अंदर ही एक है, और एक शायद इधर है, जॉगिंग ट्रैक है ना उसके बाजू में। सो मजबूरी में फिर जॉगिंग ट्रैक लेते, लेकिन कॉलेज रोड नहीं छोड़ते। और कुछ नहीं मिला तो बॉयज टाउन, नहीं तो डॉन बॉस्को, मतलब कॉलेज रोड में रहना है, मतलब स्ट्रिक्टनेस कम चाहिए। तो व्हाट हैपेंस, कमी क्यों है? परसेंटेज कम आए या मार्क्स कम आए, तो बेचारे दुखी हो जाते हैं कि अरे बीवाईके नहीं मिलेगा। विजडम है, प्रोफेशन मिल जाता है आजकल, तो वो भी आसानी से नहीं मिलता। लेकिन पहला, अच्छा, लड़कियों के पेरेंट्स ज्यादातर विजडम है सोचते हैं,
लड़कों के पेरेंट्स जो चाहते हैं बच्चे पढ़े वो लोग विजडम ऑफ रमेश में डालते हैं, लेकिन बच्चों को बिल्कुल ज्यादा नहीं रहता है वहां पे। सो स्कैरसिटी इज व्हाट, तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तुम्हारे परसेंटेज लिमिटेड है, तुम्हारे तो मार्क्स नहीं है, मैं पिछले साल की बैच की बात कर रहा हूँ। सो लिमिटेड परसेंटेज आए तो तुम्हारी मजबूरी है कि तुमको भी चॉइस करना पड़ेगा। बीए के तो गया हाथ से, तुमको या तो गोसा में लेना पड़ेगा, या तुमको डॉन बॉस्को, या जो भी वहां का कॉलेज है वो लेना पड़ेगा। और सबसे बुरा हालत रहा, मार्क्स 60% है तो तुमको बीएन नाइक में जाना पड़ेगा। नाम सुना है बीएन नाइक? बीएन नाइक भोसला सुना है? हाँ सर। लास्ट में बेचारे भोसले में जाके पूरा 5 साल दुख दुख मनाते हैं। तो ऐसी हालत हो जाती है। क्यों? लिमिटेड परसेंटेज आए तो चॉइसेस करना पड़ता है कि भाई बीवाई के गया, गोसावी गया, केटीएचएम गया, ये सब पहले भरते हैं कॉलेजेस, और फिर जो बाकी के जो है वो वहां पे। सो इट्स लाइक दिस। अब तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन दिए। आजकल बच्चे लोग ज्यादा अच्छे तरीके से पहचानते हैं मोबाइल। पहला कौन सा है? आईफोन। हाँ, ये तो तुरंत पहचान लोगे तुम लोग। दूसरा कौन सा है? ये मुझे भी नहीं पता। वीवो। वीवो। तीसरा कौन सा है? सैमसंग। ना तुमको, तुम पापा बोलते बेटा कौन सा मोबाइल चाहिए, फट से तुम्हारे मुंह से निकलता है आईफोन। फट से पापा गुस्से में देखते हैं। फिर तुम दूसरा बोलते हैं वीवो, नहीं तुम दूसरा बोलते हैं सैमसंग, वापस पापा एकदम गुस्से में। क्योंकि दोनों, तुम बोलते हो पापा सैमसंग अल्ट्रा मैक्स, पापा को पता नहीं कीमत, पापा बोलते बेटा कितने का? पापा सोच रहे होंगे 20,000 का। तुम बोलते हो पापा 1,00,000 रुपए का। पापा बोलते हैं क्या चल रहा है ये? और इसमें भी आईफोन भी 12 नहीं, ना 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 ना, आईफोन 12 नहीं चाहिए हमको, हमको मैक्स प्रो चाहिए। बराबर ना? बराबर ना? हाँ, आईफोन 12 में भी। लेकिन तुम, पापा ने बोला ना, कोई मतलब कौन सा लोगे? तुम पापा को क्या बोलोगे? पापा आईफोन मैक्स प्रो, लेकिन कोई बात नहीं आईफोन 12 चला ले, मजबूरी है तो चला लेंगे। लेकिन तुम्हारे दिल में आईफोन मैक्स प्रो की घंटी बज रही है, ठीक है? और तो पापा लास्ट में बोलते हैं कुछ नहीं मिलने वाला, ये तुमको लेके दिया, देखो तुम्हारा फेवरेट फोन आ गया। लास्ट में क्या लेके दिया तुमको? नोकिया आशा। समझा तुमको? यस और नो? यस सर। यस सर। लड़कियों को तो खैर मिल जाता है, लड़कों को पापा जो है ना, एक तो गेमिंग चाहिए उनको, पबजी और ये सब चाहिए। तो लास्ट में तुमने मांगा ये, पापा ने बोला दो क्या आशा लो। ठीक है, अभी तो खैर लेक्चर लगते हैं लाइव, तो फिर स्मार्टफोन लगता है ना। इसमें कंसेप्ट है जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं ना। मेरा एक सवाल है तुमसे, तुम कॉमर्स कर रहे हैं, तुमने कॉमर्स नहीं लिया होता तो तुम कहाँ पे गए होते? डू यू एग्री? तुम साइंस में गए होते। यस सर। So the opportunity which you have missed is called as the opportunity cost. So if पापा ने तुमको नोकिया आशा लेके दिया तो तुमने क्या खोया? अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग एन स्मार्ट। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या खोया तुमने? तुमको इनमें से कौन सा चाहिए था? आईफोन। हाँ मुझे पता था बेटा, सैमसंग तो बोलेगी नहीं, आईफोन ही बोलेगी। तो तुमने क्या खोया? आईफोन। बराबर है। तो आईफोन तुम्हारा क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। समझ में आया तुमको? यस सर। यस सर। सपोजिटली तुमने एसपी लिया तो तुमने क्या नहीं लिया? मैथ्स। तो मैथ्स क्या बन जाएगा तुम्हारा? अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट। दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स वर्क्स। कि बिकॉज तुम्हारे इच्छाएं बहुत बड़े हैं बट पैसा लिमिटेड है, तो तुमको चॉइस करना पड़ता है कि तुम्हारे पास जितना पैसा है उसके दायरे में लिए जाए। ठीक है? और जो तुमने चुना और जो त्याग किया, सो पापा ने तुमको बोला मैं कोई कोई भी एक मोबाइल का नाम लो ना जो तुम्हारे पास है, तुम लोग कौन सा एक जन यूज कर रहे हो बताओ? खुशी कौन सा यूज कर रही है? 5S। कौन सा? आईफोन 5। आईफोन 5। तेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आईफोन 12 मैक्स प्रो। यस सर। शेवी का कौन सा मोबाइल है? OnePlus 5। अरे मेरा मोबाइल ले लिया तूने।
बोल तेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? शेवी का कौन सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बोल? 1 plus nod. 1 plus nod. ओके वेदवती Redmi Note 4 है सर. कौन सा? Redmi Note 4. Redmi Note 4. तो तेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? Redmi Note 10. Redmi Note 10. लास्ट में कौन बची? वृंदा. वृंदा का तो फोन ही क्रैश हो गया था. सर मैं तो लैपटॉप यूज कर रही हूँ. लैपटॉप कौन सा यूज करिए? उसमें भी अपन बनाते ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. HP. ओ मेरा ले लिया तूने HP. तो तेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सा है? डेल मैकबुक. नोटबुक. सो या एप्पल का कौन सा आता है? क्या बोलते हैं एप्पल के लैपटॉप? MacBook. मैकबुक. हाँ सो शायद तुझे मैकबुक दिया होता ऑप्शन में कि पापा ने बोला था कोई बात नहीं बेटा मैकबुक ले, तो लिया होता तूने? यस सर. हाँ सब पीछे लाइट आती है उसके स्क्रीन के पीछे वो लाइट के लिए लिया होता बराबर ना? यस सर. हाँ सो हर जगह पे तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा ही, ठीक है ना? ये जिंदगी है, क्या करें. तुम अभी तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या पता है? घर पे रहने का. तो तुम घूम सकते हो तो कॉलेज रोड में नहीं घूम पा रहे हो, तुम्हारा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो तुम खो रहे हो. चलो ठीक है, जिंदगी अपॉर्चुनिटी. सो आई होप तुमको समझा इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स Yes, sir. तो तुम्हारे वांट्स बहुत ज्यादा है, पैसे लिमिटेड है, तो तुमको चॉइस करना पड़ता है जो तुम्हारा वांट्स के दायरे में. तुम वही उसमें डील करोगे जिसमें तुम्हारे रिसोर्सेज बैठते हैं और कुछ चीज छोड़ना पड़ेगा. सो लगभग सबका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या नाम है, आईफोन 12 प्रो मैक्स यदि लेना था, ठीक है, तो वो सबका या जो जो तुमने छोड़ा वो तुम्हारा, या छोड़ना पड़ा, छोड़ा नहीं छोड़ना पड़ा, दैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दिस इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स, राइट? सो यहाँ पे तुम्हारा व्हाट इज इकोनॉमिक्स खत्म होता है.